روزوں کو بندے مومن پر فرض قرار دیا ہے اور رات کی قیام کو مسنون کا حکم دیا ہے، یعنی رات بھر عبادت کی جائے، دن میں روزہ رکھا جائے، اور یہ اللہ تعالی نے فرض قرار دیا بندے مومن کو کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے، آگے ارشاد فرماتے حضرت سلمان فارسی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنی تجلی رحمت کے ساتھ نزول رحمت ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے کا ثواب ماہ رمضان میں اللہ تعالی فرض کے برابر عطا فرما دیتا ہے، اور ماہ رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب گویا دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی آگے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے آقا نے ارشاد فرمایا جس میں 3 اشارے ہیں۔ پہلا اشارہ رحمت کا ہوتا ہے، بندہ مومن جتنی رحمتیں لوٹنا چاہے لوٹ لے۔ دوسرا اشارہ مغفرت کا ہوتا ہے، جتنی مغفرت کرانا چاہے کرا لے۔ اور تیسرا اشارہ نجات کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان یہ خصوصیت کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس کے تعلق سے پچھلے جمعے میں بھی میں نے ان کی حدیث پاک روایت کی جو ان سے مروی ہے۔ آپ رمضان المبارک میں ہر دن ایک قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا عبد الرحمن بن عوف، آپ جو ہے ہر دن قرآن مجید کی مکمل ایک تلاوت مت کیا کرو، یعنی تراویح کے اندر وہ ایک قرآن پڑھ کے نپٹا کرتے تھے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کی ان پر فضل ہوگا، کیا ان کی زبانوں میں تاثیر ہوگی، کیا قرآن سے ان کی محبت ہوگی۔ اور صحابہ کرام کی کرامتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کرامتوں سے بھی نوازتا ہے۔ جیسے دنیا میں ساری مخلوق خدا سے اللہ کے نبی کے بعد، ابو بکر صدیق کے بعد، قطب و ابدال ولی اعظام سے پہلے اگر کوئی درجہ اس روئے زمین پر ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کو ہے۔ صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے، عبد الرحمن بن عوف تو حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف قرآن ہر دن ایک مت پڑھا کرو، تقریباً پورے رمضان میں ایک قرآن کی تلاوت ہو گئی تو تمہارے لیے کافی ہے، تاکید فرمائی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، یا رسول اللہ میری طاقت ہے، میری قوت ہے، میں قرآن زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ایک حدیث پاک کا جز ہے، فرمایا 20 دن میں قرآن پورا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ 7 دن میں تم قرآن پورا کرو، یعنی مختلف کلمات جو محدثین نے روایت کیے ہیں۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی قرآن مجید پڑھنے کی تاکید فرمائی، لیکن اس میں طاقت کا لحاظ رکھا گیا، یعنی انسیت نہ ہونی چاہیے۔
دل کو اکتاؤ پر نہیں آنا چاہیے، انسان بندے مومن پر لوڈ زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے ماہ رمضان میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، اور وہ بھی سنت مؤکدہ، فرض یا واجب نہیں۔ قرآن کو پورے رمضان میں ایک مکمل قرآن پڑھا جانا یا سن لینا یہ سنت رسول اللہ ہے، اور سنت تراویح 20 رکعت ہر دن کے ساتھ پوری چاند دیکھنے سے لے کر عید کے چاند دیکھنے تک ہر دن بعد نماز عشاء تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہ سنت مؤکدہ کا درجہ کیا ہے؟ یہ بندے مومن پر بھی سنت مؤکدہ ہے، اور بندی مومنہ پر یعنی اسلامی بہنوں پر بھی، یہ مسلمان عاقلہ بالغہ پر یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بندے مومن پر جماعت سے نماز ادا کرنا، اور مومنہ پر اسلامی بہنوں پر جماعت سے ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو انفرادی طور پر الگ الگ طریقے سے یعنی اکیلے اکیلے سنت مؤکدہ، سنت تراویح ماہ رمضان میں مکمل چاند دیکھنے سے لے کر ابھی کل کو دیکھے گا یا آج دیکھے گا تو عید کے چاند دکھنے تک یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو ترک کرنا گناہ ہے، اور اس کی عادت بنا لینے پر ترک کرنے کی تو یہ گناہ پر عتاب ہو جائے گا، یعنی گناہ پر گناہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی عادت بنا لینے پر یہ سخت گناہ ہے، اور چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، یعنی گناہگار ہو جائے گا، یا مومنہ ہو، اسلامی بیٹی ہو یا اسلامی بہنیں ہو یا اسلامی بھائی ہو۔ اسلامی بھائیوں کو جماعت سے تراویح کی نماز ادا کریں، اور اسلامی بہنیں بغیر جماعت کے گھر پر ہی نماز تراویح بھی عشاء کی نماز کے بعد ادا کریں۔ یہ سنت مؤکدہ جیسے مرد پر ہے ایسے ہی اسلامی بہنوں پر بھی ہے۔ غمان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صرف اسلامی بھائی مسجد میں جا کے تراویح پڑھتے ہیں، ہم نے عشاء پڑھ لی تو پڑھ لی، ہم پر کوئی نماز تراویح پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ جیسے اسلامی بھائیوں پر نماز تراویح سنت مؤکدہ پڑھنا ہے، ایسے ہی اسلامی بہنوں پر بھی سنت مؤکدہ۔ فرق یہ ہے اسلامی بھائی جماعت سے ادا کریں اور اسلامی بہنیں بغیر جماعت کے ادا کریں۔ حالانکہ جماعت کر سکتے ہیں لیکن وہ مکروہ تحریمی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے مکروہ تحریمی عمل کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے انفرادی ادا کریں اور پوری سنت مؤکدہ تراویح کے فیضان سے مالا مال ہو۔ ماہ رمضان میں اہم عبادت وہ روزہ، اور روزے کے بعد سنت تراویح، اور ماہ رمضان میں دن بھر قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو قرآن پڑھنا یہ بھی اہم عبادت ہے۔ حالانکہ اور مہینوں میں بھی قرآن پڑھنا بہت عمدہ ثواب، بہت اہم فریضہ، بہت اہم عبادت، لیکن ماہ رمضان میں روزہ رکھنا یہ اہم عبادت ہے، یعنی عظیم عبادت۔ ماہ رمضان میں روزہ فرض اور روزہ رکھنا یہ اہم عبادت۔ یہ نماز تو ہر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہوتی ہے، لیکن رمضان میں بھی ہوتی ہے۔ نماز کے مسائل وہی ہے، ارکان وہی ہے، شرائط وہی ہے، فرائض وہی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اب صورت حال چینج ہوگی۔ رمضان کے مہینے کی برکت سے نماز کے ثواب میں بھی اضافہ پیدا ہو جائے گا، یعنی رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ، شعبان کا مہینے سے پہلے رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے سے جمادی الاخری کا مہینہ، جمادی الاولی کا مہینہ، ربیع الثانی کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، یہ تمام مہینے جو پہلے گزر گئے، رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض پنجگانہ روزمرہ نماز پڑھی جاتی ہے، ارکان شرائط فرائض وہی رہتے۔ ماہ رمضان میں بھی نماز ویسے ہی ہے، اراکین شرائط و فرائض نماز کے واجبات سنن و مستحبات وہی پائے جاتے، لیکن رمضان کے مہینے نماز کی بھی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اندازہ لگا لیں اگر ماہ رمضان میں اگر نفل نماز 2 رکعت اگر بندے مومن پڑھ لے تو نفل نماز کا ثواب دوسرے مہینوں میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا رکھا
गया है, लेकिन रमजान में अगर अदा कर ले तो फर्ज के बराबर सवाब मिल जाता है। जैसे 11 महीने में फर्ज नमाज का सवाब मिलता है, वैसे ही फर्ज नमाज का सवाब यानी रमजान में 2 रकात नमाज नफल अदा करने में फर्ज का सवाब मिल जाता है। और फर्ज नमाज का सवाब माह रमजान में दूसरे महीनों में फर्ज नमाज अदा करता है तो 70 फराइज अगर वो एक बार में अदा करे और माह रमजान में यही जुम्मे के 2 रकात नमाज फर्ज अदा कर ले तो 27 फर्जों का सवाब मिल जाता है। ये माह रमजान की बरकत है। ये दूसरे महीने में फैजान हासिल नहीं होता है प्यारे, ये माह रमजान में हासिल होता है। दूसरे महीने में यानी एक नेकी का सवाब 10 तक मिल जाता है, लेकिन माह रमजान में एक नेकी का सवाब 70 से लेकर 700 तक अदा कर दिया जाता है। यानी 70 से लेकर 700 तक उसको सवाब दिया जाता है। ये माह रमजान का फैजान है। ये माह रमजान ही के महीने में सवाब में इजाफा होता है, बरकतों में इजाफा होता है। माह रमजान में रिस्क बढ़ा दिया जाता है मोमिनीन का, यानी रिस्क में इजाफा, यानी उसकी कमाई में इजाफा, उसकी नियतों में इजाफा, उसके कदम उठाने में इजाफा, उसके तमाम मामूलात में इजाफा हो जाता है। यह माह रमजान है। दूसरे महीने में भी रिस्क दिया जाता है, लेकिन उसका रिस्क बंधा हुआ रहता है, लेकिन माह रमजान में इजाफा कर दिया जाता है। यही वजह है माह रमजान में कोई तंग नहीं रहता। दूसरे महीनों में मांग के खाएगा आदमी, लेकिन उसकी अगर साइल है यानी मांगने की आदत है तो मांग के खाएगा, यानी सुबह मांगेगा शाम में खाएगा, शाम में मांगेगा सुबह खाएगा। लेकिन माह रमजान की एक ऐसी जाहिरी अलामत देख लो, चाहे जो मांगता होगा वो भी खुशहाली से खाता है, यानी सुबह अगर वो उसका इंतजाम हो जाता है और शाम में बड़ी इज्जत के साथ रब की बारगाह में बैठता है इफ्तारी के लिए। और जब इफ्तारी के लिए बैठता है उसके सामने लज्जत भरे खाने रखे होते हैं, फ्रूट रखे होते हैं, मेवात रखे होते हैं और बड़ी लज्जत के साथ खाता है। और बल्कि सुन्नत तो अफ्तारी में ये है पानी के साथ रोजा अफ्तार करे या खजूर के साथ अफ्तार करे, यानी अफ्तारी करना सुन्नत रसूलुल्लाह है। यानी वो जो है वो पानी से अफ्तार करे या खजूर से अफ्तार करे, ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। लेकिन जमाने में बज़ाहिर आपने देखा होगा कि दस्तरखान लगा रहता है, ऐसे फ्रूट रहते हैं, कभी गरीब ने दूसरे महीने में देखे नहीं होते, लेकिन अगर वो अफ्तार के लिए बैठ जाता है तो कोई ऐसा अजनबी आदमी आता है और वो फ्रूट लाके रख देता है, साहब मेरी तरफ से अफ्तारी कर लीजिएगा। यानी ये इंतजाम है, लोगों के रिस्क में बरकतें हो जाती है, रिस्क में इजाफा हो जाता है, लोगों की नियतों में इजाफा हो जाता है, लोगों की उम्रों में बरकतें हो जाती है, लोगों की कमाइयों में बरकतें हो जाती है, लोगों की नेकियों में बरकतें हो जाती है। ये माह रमजान खुसूसियत के साथ आता है, इसलिए कुछ इलाकों में लोग जो है अपना कारोबार बंद करते हैं और माह रमजान में मुकम्मल इसकी जो बरकतें हैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। कहते हैं कारखाना बंद कर दो, माह रमजान की हम बरकतों से महरूम नहीं होंगे, यानी अपनी गाड़ियां बंद कर दो, हम गाड़ी चलाने नहीं जाएंगे, माह रमजान में हम मुकम्मल एतिकाफ करेंगे। ये लोग जो इस माह रमजान की अहमियत को जानते हैं वो इस तरीके से रमजान गुजारते हैं। कारोबार बंद, माह रमजान की बरकतें बंद ना हो, हमारी गाड़ियां बंद हो जाए, लेकिन रमजान के महीने में एतिकाफ का सवाब हमसे दूर ना हो, यानी हमारा सफर करना बंद हो जाए, लेकिन हमारे महल्ले की मस्जिद में नमाजियों की इजाफा हो जाए, यानी इजाफा हो जाए, हम भी उसमें शामिल हो जाए। और पूरे महल्ले में जो लोग रोजा रखते हैं, जिनके खाने पीने का इत्तेमाम नहीं होता, अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हम उनके लिए खाने का इत्तेमाम कर देंगे, हमें भी सवाब मिलेगा और उनको भी अज्र मिलता चला जाएगा, सवाब में कोई कमी नहीं होगी। यह माह रमजान है जो इसके मसाइल और इसके अहकामात और इसके फजाइल जो जानता है, माह रमजान के दोस्तों वही जानता है जो इसको पढ़ लेता है या समझ लेता है या उलमा की बात को अपने सीने में बिठा लेता है, वही जानता है माह रमजान की अहमियत क्या है। साहब ये माह रमजान जैसे मेरे आका की हदीस पाक है, इसकी अहमियत समझा जा सकता है। यानी मेरे आका ने फरमाया माह रमजान का इंतजार मेरे आका खुद शाबान के महीने में करते थे, रजब के महीने में करते थे, और मेरे आका ने खुद फरमाया या अल्लाह हमें माह रमजान को हमारी जिंदगी में शामिल फरमा, जैसे तूने रजब का महीना शामिल फरमाया, जैसे तूने शाबान का महीना शामिल फरमाया, ऐसे ही माह रमजान का महीना भी शामिल फरमा। तो लिहाजा मेरे प्यारों, माह रमजान के इंतजार वही करता नजर आता है जो रोजे
की आदत बनाए हुए हैं, यानी जो रोजा रखता है, जो रोजा रखने की आदत बनाए हुए है, सहरी करना पसंद करता है, अफ्तारी में बैठना दुआ मांगना ये पसंद करता है। हदीस पाक में आया है अल्लाह तबारक व तआला सहरी के वक्त में और अफ्तारी के वक्त में, यानी हजरत मूसा कलीमुल्लाह से रसूल मेरे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर दूरी का मामला था तो 70 हिजाब का मामला बीच में रखा हुआ था। ऐ मूसा कलीमुल्लाह तेरी और मेरी दूरी इतनी होगी कि 70 हिजाबात का मामला बीच में रहेगा, लेकिन मेरे आका की हदीस पाक से मालूम होता है बंदा मोमिन सहरी के वक्त में और अफ्तारी के वक्त में मेरे अल्लाह मेरे आका ने इरशाद फरमाया हदीस पाक में है अल्लाह ताला मेरी उम्मत के इतने करीब हो जाता है सहरी और अफ्तारी के बाद, यानी कोई पर्दा हाइल नहीं होता, बल्कि या तो बंदा मोमिन एहसास करता है या अल्लाह अपनी रहमत उन पर निछावर करता है। हिजाबात का मामला नहीं होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कलाम हुआ तो 70 हिजाबात का मामला रहा, लेकिन अल्लाह ताला का फैजान है और हुजूर का खास करम है इस उम्मत पर, यानी सहरी और अफ्तारी के वक्त में अल्लाह ताला सारे हिजाबात हटाता है और बंदे मोमिन उस आलम में जब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को खुद कबूल फरमा लेता है। वाना असुमुली वाना अजूजुली, यानी असुमुली जो मेरी रजा के लिए रोजा रखता है उसके रोजे की जजा देने के लिए मैं किसी फरिश्ते को मुकर्रर नहीं करता, वाना अजूजुली ही खुद उसका रब उसको जजा देता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए बंदा रोजा रखता है तो साहिब अपना आप को रोजेदार बनाइए, रोजा छोड़ने की आदत मत बनाइएगा। आज ये जुम्मा जो है ये माह रमजान में शामिल नहीं है, अब जो जुमे आएंगे चारों के चारों वो माह रमजान में आएंगे। अल्लाहू अकबर, पहला जुम्मा 7 मार्च को आ जाएगा, दूसरा जुम्मा 14 मार्च को आ जाएगा, तीसरा जुम्मा 21 मार्च को आ जाएगा और जो आखिरी अलविदा का जुम्मा होगा वो 27 मार्च को आएगा और वही जो है इंशाअल्लाह ताला 26वां रोजा होगा और 27वीं तरावी होगी। शायद मेरे जहन में यही बात है और यही कैलेंडर में लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुम्मा जो है आपके लिए तालीम याफ्ता है, यानी तरबियत याफ्ता है। आज जो सबक दिया जाएगा पूरे रमजान में अमल कीजिएगा, इसलिए कि माह रमजान से महरूम मत होइएगा। लोग बड़ी आसानी से कहते थे साहब मेरे बच्चे का पेपर है, रोजा नहीं रखाऊंगा, मैं काम पे जाता हूं, मैं रोजा नहीं रख पाऊंगा। ये सब शरई उज़्र नहीं है, यानी शरई कोई उज़्र नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो रोजा छोड़ने की आदत बनाए। अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से कुरान में वाज़ेह फरमाया है, यानी बीमार ऐसी हालत में कि जिसकी बीमारी बढ़ रही है उसको रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। ऐसा मुसाफिर जो सफर करता है और सफर की हालत में वो दिक्कतों का सामना करता है उसको रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। ना तो काम करने वाला ऐसा जो अपनी कमाई के लिए काम कर रहा है उसके लिए क्या उज़्र शरई है, बच्चा पेपर दे रहा है उसका क्या मुंह सूख रहा है या उसको क्या भूख लग रही है लिखते हुए, क्या रोजा छोड़ने की आदत है। लोगों में ये गलत फहमी है, बच्चों को रोजे से दूर करते हैं, बच्चियों से दूर करते हैं, अपने आप को भी रोजे से दूर करते हैं। याद रखना रोजा एक छोड़ देना जानबूझ के, अगर इसका बदले में पूरी जिंदगी भी मरते दम तक रोजा रखता रहा बंदे मोमिन तो कभी भी उसके बराबर सवाब नहीं पा सकता। यानी 60 मिस्किनों को खाना खिलाएगा लेकिन कफारा तो अदा हो जाएगा, लेकिन यारो याद रखो वो रोजे का सवाब फिर भी नहीं मिल पाएगा। अगर वो 60 मिस्किनों को खाना खिला दे और या एक मिस्किन को, एक गरीब को अगर सुबह शाम पेट भर के 60 दिन तक खिला दे तब कफारा अदा होगा। लेकिन याद रखना उसके बराबर जो रमजान का महीना तुमने छुड़वाया या छोड़ दिया उसके बराबर सवाब फिर भी नहीं मिल पाएगा। हजरत अली कहते हैं अगर जानबूझ के बंदे मोमिन अगर रोजा छोड़ दे तो पूरी जिंदगी भी अगर रोजा रखेगा तो उसका सवाब नहीं मिल पाएगा। याद रखो अल्लाह से डरो, इसका हिसाब किताब होगा। रोजा रखना फर्ज है, जैसे नमाज रखना पढ़ना फर्ज है, जैसे नमाज पढ़ के जन्नत हासिल की जाती है ऐसे ही रमजान के महीने में रोजा फर्ज रखे जन्नत हासिल की जाती है, अल्लाह की रहमत हासिल की जाती है। जैसे फजर की नमाज पढ़ता है बंदा और एक ज़ोहर की नमाज का इंतजार करता है, बीच में अगर सगीरा गुनाह हो जाए अल्लाह ज़ोहर की नमाज की बरकत से उसके गुनाह माफ कर देता है। ऐसे ही 11 महीने अगर सगीरा गुनाह बंदे कर ले अल्लाह ताला इन तीनों आशरा में जो रमजान के महीने में आता है अल्लाह ताला इस महीने में पूरे फैजान से उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है।
जैसे नमाज की बरकत से नमाज फजर की पढ़ी, ज़ोहर का इंतजार है, तो बीच में अगर कोई सगीरा गुनाह हो गया, उस नमाज की बरकत से ज़ोहर की यानी कभी सगीरा गुनाह माफ हो जाता है। ज़ोहर में नमाज पढ़ी, असर का इंतजार है, बीच में कोई सगीरा गुनाह हो गया, छोटा सगीरा गुनाह हो गया, तो असर की नमाज की बरकत से सगीरा गुनाह माफ होता है। अगर असर की नमाज पढ़ी, मगरिब का इंतजार है और मगरिब की नमाज पढ़ी, तो मगरिब की नमाज की बरकत से सगीरा गुनाह माफ। मगरिब की पढ़ी, ईशा का इंतजार है, ईशा की पढ़ी, पूरी रात सोया फजर के इंतजार में, तो बीच में कोई सगीरा गुनाह हुआ तो माफ है। यानी अल्लाह अपने फजल करम से नमाज की बरकत से उसका गुनाह सगीरा माफ कर देता है, छोटा गुनाह। ऐसे ही अल्लाह ताला इस माह रमजान को बरकतों वाला है, यानी रहमत वाला, मगफिरत वाला, निजात वाला। तो बंदा मोमिन क्यों इसकी निजात भरी लड़ियों से क्यों दूर होता है, इसकी रहमतों से क्यों दूर हो रहा है, इसकी मगफिरत से क्यों दूर हो रहा है, इसमें जो निजात का परवाना है उससे क्यों दूर हो रहा है। अगर बंदे मोमिन खुदा अपनी वजह से इस माह रमजान से महरूमी हासिल करता है तो उसके जिम्मेदार खुद है, कोई और नहीं है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, रमजान के महीने में रोजा रखने की आदत बनाइए, अपने बच्चों की भी आदत बनाइए। अगर बच्चा 7 साल का है, अगर कोई रोजा रखने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो बच्चे को 7 साल के को भी रोजा रखने की आदत बनाओ। अगर इस्लाम की बेटी तुम्हारे घर में है, अगर वो 9 साल से लेकर 12 साल के बीच में चल रही है, हालांकि इस्लाम का नुक्ता नजर ये है कि 9 साल की बेटी हो जाए तो उसके बाद बलागत की हालत में चली जाती है और 11 से 11 यानी 10, 11, 12 महीने के अंदर अंदर वो बालिग हो जाती है, यानी उसमें रोजा फर्ज होने की सूरत पाई जाएगी। अब लोगों को भी पता नहीं है कि बच्चे पर रोजा का फर्ज होता है। ये तमाम मसाइल लोग अपने जहन में बिठाना नहीं चाहते। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होगा, रोजे में फर्ज नहीं होगा, ये गलत फहमी का इजारा है। इस्लाम का नुक्ता नजर दुनिया की जबान झूठी हो सकती है, लेकिन इस्लाम की जबान कभी झूठी नहीं हो सकती। तुम्हारी मेरी जबान झूठी हो सकती है, मुस्तफा का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया और शारी ने हदीस फरमाते हैं, 9 से 12 साल के बीच में इस्लाम की बेटी बालिग हो जाती है, इस्लाम शरीयत उस पर नाफिज हो जाएंगे। इस्लाम का बेटा 12 से 15 साल के बीच में इस्लाम का बेटा बालिग हो जाता है, शरीयत के इस्लाम उस पर नाफिज हो जाएंगे। कभी गौर किया आपने हमारी बेटी कब बालिग होती है? कभी गौर किया आपने इस्लाम का हमारा बेटा कब बालिग होता है? कभी नहीं। कभी अपने घर में इस्लामी बेटियों को, बहनों को या माओ को नहीं बोलते हो। अगर आपकी बीवी है तो उसे बोलो तुम्हारी बेटी कब बालिग होगी, पूछा करो। इसलिए कि अगर बालिग हो जाए तो इसको नमाज की अहमियत बताओ, रोजे की अहमियत बताओ, इबादतों की अहमियत बताओ। इस्लाम का बेटा है तो माँ को बोलना चाहिए बाप से, यानी माँ को बोलना चाहिए बच्चे के उसके शोहर से, अपने बेटे से पूछो कैसी सूरत गुजर रही है, इसके हालात कैसे गुजर रहे हैं। अगर हालात पता चल जाए तो मस्जिद में जाके जामा मस्जिद में इमाम साहब से पूछो क्या हुक्म है इसके लिए। अगर ये सूरत पूछी जाएगी तो मुझे लगता है हमारा मुआशरा सही गुजर रहा है। अगर गलत फहमी के इशारे में रहे तो बच्चा भी गुनाहगार है, इससे उनके माँ बाप भी गुनाहगार है, क्योंकि तुम पक्का इस्लाम की तालीमात लेते, इस्लाम के मसाइल सीखते, इस्लाम में दीन इस्लाम को इतना सीखना पड़ है, जायज नाजायज मालूम हो जाए, हलाल और हराम मालूम हो जाए, जरूरियात मसाइल मालूम हो जाए, तो इस्लाम के बेटे ने क्यों ऐसे मसाइल नहीं सीखे? तो उस पर सबसे अहम थे। याद रखो इस्लाम के बेटों पर सबसे जिम्मेदारी है कि वो इतना इल्म दीन सीख ले जितना उनकी जिंदगी में जरूरी है। अगर नहीं सीखा तो ये मौलाना जिम्मेदार नहीं है, या मौलाना साहब जिम्मेदार नहीं है, कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं। बच्चों के जिम्मेदार उसके माँ बाप है। अगर बच्चे को वाज़ेह कर दिया गया कि बेटा तुझ पर रोजा फर्ज हो गया, अब मेरे कहने की वजह से रोजा मत छोड़िए, मेरे कहने की वजह से नमाज मत छोड़िए, अब तेरा रजिस्टर बन गया है, अब जैसा तू भरेगा वैसा लिख दिया जाएगा। अगर नेकी है तो नेकी, बदी है तो बदी। कल जो ये रजिस्टर खोला जाएगा रब की बारगाह में, तो ये इस रजिस्टर के एतबार से हिसाब किताब होगा। याद रखो मुसलमानों, याद रखो अपने बच्चों के ताल्लुक से, अपने ताल्लुक से रोजे की फिक्र जताइए, रोजेदार बन जाइए। और ये बहुत हमारे मुआशरे में होता है, जैसे ही रमजान का महीना आता है हमारे घर में अगर कोई बेटी बहन या कोई भी हो उम्मीद से होती है तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है रोजे की हालत में डॉक्टर साहब ने रोजा रखने की इजाजत नहीं दी है, मैं रोजा नहीं रखूंगा। हालांकि तफसीरों के अंदर आता है, यानी मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर रोजे की हालत में रोजा रमजान के महीने में अगर इस्लाम की बेटी जिसको उम्मीद ना हुई हो, जिसे कोई औलाद ना हो, तो रोजा रखने वाली खातून अगर रोजा रख ले तो
تو امکان ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے. یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے بے اولاد دار بن سکتا ہے. یہ مفسرین نے لکھا ہے. لیکن یہ کہاں سے آ گیا صاحب؟ اسلام کی بیٹی کے تعلق سے اگر کوئی ڈاکٹری چل رہی ہے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا. اگر 19 سے ہے پانی کم ہو جائے گا روزہ نہیں رکھا جائے گا. اگر کوئی تجربے کار ڈاکٹر بیماری بڑھنے کا اندیشہ بتاتا ہے تو اس صورت میں تو نہ رکھنے کی اجازت ہوگی. لیکن ایسی چوکٹ میں، ایسے ہی فالتو میں، ایسے ہی بلا عذری روزہ نہ رکھو، بس اس کا حکم کون دیتا ہے؟ کبھی کسی عالموں سے پوچھا، کبھی کسی عالم صاحب سے پوچھا کس صورت میں روزہ نہ رکھا جائے گا، کس صورت میں رکھا جائے گا؟ تو لہٰذا یاد رکھو، روزہ نہ رکھنے کی عادت مت بناؤ، روزہ رکھنے کی عادت بناؤ، روزہ رکھنے کی عادت بناؤ. ایسے بہت ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو قصداً روزہ نہیں رکھتے. حالت تو یہ ہوتی ہے روزہ دار اگر یہاں کرسی پہ بیٹھا ہے تو بازو میں آ کر کے بیمن لگا دیتا ہے، یہ رگڑا تک کرتا ہے. شرم اتنی اٹھ گئی، بے حیا پن اتنا ختم ہو گیا لوگوں کا. پہلے اگر کسی کا عذر شرعی کی وجہ سے کوئی عالم دین نے منع کیا تو روزہ مت رکھو، تم کو اجازت دیں گے، تو وہ آدمی کبھی کھاتا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا روزہ دار ہے. اور آج اتنی بے حیائی ہے کہ روزے دار اگر 4 بھی بیٹھے ہو تو وہیں پر رگڑا لگائے گا، منہ میں رکھے گا، تھوکے گا، ظاہر کر دے گا میں سب سے بڑا ظالم ہوں. رمضان کی عظمت نہیں جانتا، روزے دار کی اہمیت نہیں جانتا. میں ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا، اوپر سے بے حیائی، ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا، اوپر سے گناہ. اللہ کے بندو اپنی زندگی پہ رحم کرو، اپنی جان پہ ظلم مت کرو، اپنی زندگی کو تنگ مت کرو، اپنی زندگی کو وسیع بناؤ، آرام دہ بناؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہر وقت کھولے.